بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد کو الٹا لکھو یا سیدھا لکھو، درد درد ہی رہتا ہے۔ درد کے پہلے دا نکال دیں تو رد بنتا ہے، اور اگر دوسرا دا نکال دیں تو در بنتا ہے۔ جان لیں کہ کسی کے در سے انسان جب رد کیا جاتا ہے تو انسان کو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو اس در پر جوڑ دیتا ہے جہاں سے کوئی بھی رد نہیں ہوتا، اور وہ در ہے صرف تمہارے رب کا در۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، اسی طرح نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم کسی برائی کے قابل نہیں رہتے۔ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اس لیے تم اتنے یقین سے دعا مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزہ لکھی جائے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ کچھ چیزیں دیری سے ملیں گی لیکن تم صبر کرنا، یقیناً تم ان چیزوں کو پا لو گے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، تو بس انتظار کر۔ اس دنیا میں سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ یقین جانو تمہارا رب معجزوں کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ جب چاہے تمہارے حالات بدل سکتا ہے۔ صبر کریے، کیونکہ اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائشوں سے نکالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ صرف اپنے لیے سوچنے والا جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہ انسان ہے۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے تو یقین جان لو وہ تمہارے برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ انسان 3 چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا ایمان، لا حاصل دعا، اور بے پناہ محبت۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ اپنے مسلمان بھائی کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں ایماندار آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر ہو۔ جب انسان اپنا درد اپنے اللہ سے بانٹ لیتا ہے تو اس کی روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد ہی مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں؟ تو مرغے نے جواب دیا کہ یہ دنیا جگانے والے کا یہی حال کرتی ہے۔ پنچھی اور انسان
अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हें अपने रब पर यकीन रखना चाहिए। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें वसीला बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज दूसरी नमाज से पहले होने वाली खताओं को मिटा देती है। अपने हाथों से खैरात को मत रोको, वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। जब तुम कहीं रास्ता भूल जाओ तो वहाँ दाहिनी सिमत इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपना ख्वाब आलिम या अपने खैर ख्वाह के अलावा किसी को ना बयां करो। इस दुनिया में जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं रखता। कुछ लोग आपकी मदद करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, बल्कि असल में वो आपके दुश्मन होते हैं। झुको सिर्फ वहाँ जहाँ तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। अल्फाज पढ़ने के लिए आंखें और एहसास पढ़ने के लिए दिल चाहिए। इस दुनिया में अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर दूसरों को रोशनी से भर देते हैं। मुश्किल रास्ते अक्सर इंसान को खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना रखो। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा रखना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ ना करना तकब्बुर है। जब किसी काम का इरादा कर लो तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इस दुनिया में तुम्हारा हकीकी दोस्त सिर्फ तुम्हारा अल्लाह है। इस दुनिया में शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह की मखलूक को तकलीफ पहुंचाना है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हो, क्योंकि बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस दुनिया में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। इस दुनिया में लोग जिंदा हैं लेकिन रिश्ते मर गए हैं। आग अपने ही लगा सकते हैं और गैर तो सिर्फ हवा देते हैं। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, और मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, क्योंकि तेरे दर के सिवा मुझे कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में लोग तो जिंदा हैं लेकिन रिश्ते मर चुके हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर। हज़रत अली ने फरमाया खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाते हैं, खूबसूरत जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत अपनी नफ्स का हुक्मरान होना है। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दें, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए होते हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, इंसान का दिल और नज़र
काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। इंसान को अपने इखलाकी किरदार की पासदारी करना चाहिए, वरना मरते वक्त पछतावा उसका मुकद्दर होगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि तू परहेजदार बन, फिर तू अपनी रूह की ताकत दे। इंसान के चेहरे का रंग दिल के हालात की अलामत है। जो शख्स बचपन में तमीज़ नहीं सीखता, वो बड़ा होकर भी उसे नहीं सीख पाता। इस दुनिया में नींद एक मुतमईन ज़िंदगी का सबूत है, क्योंकि खुशकिस्मत है वो जिसकी नींद किसी खौफ या किसी शौक से परेशान ना हो। अगर कहीं ये शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह के करीब है, तो उस शख्स के करीब हो जाओ। इस दुनिया में सब्र करने वाला वो होता है जो जलाली आदमी के साथ गुजारा करे। नस्लें संवर जाती हैं जब कोई कुरान पाक को समझकर पढ़ना शुरू करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी का घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। जब लोग रास्ते अलग करने का फैसला कर लेते हैं, तो सबसे पहले राब्ता कम कर देते हैं। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। हम मुसलमानों में हर मुसलमान ईमान पर मरना चाहता है, लेकिन ईमान पर जीना कोई नहीं चाहता। अल्लाह चाहे तो एक पल में कर ले कबूल, मगर ये देरी तुम्हारी हिफाजत की इंतज़ामात हैं। कभी कभी हम और अल्लाह जानता है कि हम पर क्या बीत रही होती है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है, और कहीं सब्र की तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। ये तो रहमान की रहमत को गवारा ही नहीं कि वो तुम्हें तारीकी में भटकता छोड़ दें। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के पानी से डूब जाती हैं। बेमौत मर जाता है इस दुनिया में बेआवाज़ रोने वाला। हज़रत अली ने फरमाया, जो शख्स बुरे लोगों के साथ एहसान करता है, वो खुद भी उनके शर से महफूज नहीं रह पाता। इस दुनिया में हया की इंतहा ये है कि इंसान खुद अपने आप से हया करे। नर्म दिल लोग खालिक कायनात की सबसे खूबसूरत तख्लीक हैं। इस दुनिया में गीबत करने वाले की दुआ कभी कबूल नहीं होती। नशा किसी भी चीज़ का हो, इंसान को गुलाम बना देता है। इस दुनिया में माँ की दुआ कभी बदनसीब नहीं होने देती, और वहीं बाप की दुआ कभी गरीब नहीं होने देती। गीबत अमल को खा जाती है, झूठ रिज़्क़ को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, और तकब्बुर इल्म को खा जाता है। अल्लाह ताला से जब भी मांगो, भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। ज़माने के रुजू से सबक मैंने ये सीखा है कि किसी के साथ मत चलना, अगर चलना पड़े भी तो हमेशा फासला रखना, क्योंकि इस दुनिया में किसी के ज़्यादा पास आने से हमेशा रिश्ते टूट जाते हैं। इस दुनिया का सबसे अच्छा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का उसे एक पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आता। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौलाना रूमी ने फरमाया कि अकल ने सवाल किया
کہ موت سے زیادہ کوئی اور دردناک چیز ہے تو موت نے جواب دیا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کا اور دوست ہمیشہ کردار کا منتخب کرو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر جو چیزیں تیرے لیے ہیں، کیونکہ جو چیزیں تیرے لیے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں، اس لیے تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کا حرص اور لالچ اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو جو ملنا ہوتا ہے وہی مل کر رہتا ہے۔ اپنے والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس دنیا میں کسی کو ناحق باتیں سنانا دل سے لذت عبادت کو دور کر دیتا ہے۔ کل میں چالاک تھا اور دوسروں کو بدلنا چاہتا تھا، لیکن آج میں سمجھدار ہوں اور خود کو بدل رہا ہوں۔ افسوس، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ گند اٹھانے والے کو گندا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقل کی علامت ہے۔ جو رشتہ تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو۔ جب ساتھ دینے والا مشکلات پیدا کرنے لگے تو تنہائیاں ہی بہتر ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی کے پرانے غموں پر اپنے تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کی برسات سے کھلتے ہیں، نہ کہ بادلوں کی گرج سے۔ اس دنیا میں آپ کے باپ کے آنسو آپ کے دکھوں سے نہ گریں، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے تو سوچو اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ کو جینا ہے تو آپ کو اپنے مسائل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ وسیلہ اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا، اور اللہ تعالیٰ ہی کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا اصل رنگ تب سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہ رہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہتر کرو۔ آپ کی دعا کا سارا خزانہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔
इस दुनिया में मोहब्बत में किसी गैर की राय लेना हराम है। हर आरिफ आलिम होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आलिम आरिफ हो। अगर मखलूक खालिक से ताल्लुक़ में रहे तो सलामत, वरना तो फिर क़यामत ही क़यामत। छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और वहीं बड़े दर्जे के लोग अदाब करते हैं। तौबा का ख्याल खुशकिस्मती है, क्योंकि जो गुनाह को गुनाह ना समझे वो बदकिस्मत है। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते, और उसी तरह हमारी औलाद भी हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है, लेकिन हम नहीं समझते। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के जहन में रह जाना भी जिंदा रहने का एक तरीका है। हमसे कोई उम्र पूछे तो हम गुजरी हुई उम्र बता देते हैं, हालांकि हमारी असल उम्र तो वो है जो बाकी है। इस दुनिया में गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और वहीं बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। अल्लाह कब राज़ी होता है? जब आप एक दूसरे को राज़ी रखें। अगर अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो। हमें बहुत ज़्यादा इल्म के बजाय थोड़े से आदाब की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दुनिया में इससे पहले कि हमसे सब कुछ छीन लिया जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अपनी नई नस्ल को माँ बाप की अताअत सिखा दो तो ये उनकी नजात के लिए काफ़ी है। बुरे इल्म से बेइल्म रहना बेहतर है। अपने इल्म को अमल में लाने के लिए यकीन के साथ एक रहनुमा की भी ज़रूरत होती है। इंसान ने आसमानों के रास्ते तो दरियाफ्त कर लिए हैं, लेकिन दिल का रास्ता अभी तक दरियाफ्त नहीं किया। गम किसी तरह का भी हो, लेकिन हर इंसान के आंसू एक जैसे ही होते हैं। खुशी देने से मिलती है, मोहब्बत भी देने से मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मांगने से नहीं मिला करती। जहाँ एहतराम होता है वहाँ खामोशी होती है। इस दुनिया में एक अच्छे मुसलमान की यही अलामत है कि जब बोले सच बोले, वादा करे तो उसे पूरा करे और किसी का हक ना मारे। भिखारी वो है जिसको दुनिया ने ठुकराया है, और फकीर वो है जिसने दुनिया को ठुकराया है। हमारी ज़ात रूहानियत को उस वक्त तक कबूल नहीं कर सकती जब तक हम अपनी ज़ात की नफ़ी ना कर दें। इस दुनिया में दूसरों की खिदमत वही कर पाता है जिसके नज़दीक उसकी अपनी ज़रूरत और अपने काम कोई मायने ना रखते हों। जो लोग खुद फाके से होने के बावजूद भी दूसरों को खाना खिलाते हैं, उनके लिए बेपनाह अज्र है। इल्म इंसान को ज़हनी तौर पर इतना बड़ा बना देता है कि जो लोग उसे दुख देते हैं वो उन्हें जवाब में खामोशी देता है। तिलावत कलाम पाक रब ताला तक पहुँचने का बेहतरीन ज़रिया है। इल्म बग़ैर तरबियत के इंसान को नफ़ा नहीं दे सकता। अगर इंसान बेअमल है तो उसकी ज़बान में तासीर होगी और उसकी ज़बान से अदा होने वाली हर बात दिल में उतरती चली जाएगी। वादा वईद की पाबंदी की जाए, क्योंकि ये सच्चे ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स रूहानियत में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है तो वो कसरत से रोज़े रखे। इंसान में चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उसमें मायूसी और नाकामी की सोच आ जाती है। इस दुनिया में रूहानियत तो हम पर यह एहसान करती है कि हमें दुनिया की मोहब्बत से बहुत दूर ले जाती है। जब आप अपनी नफ्स से जिहाद करते हैं तो आप इस दुनिया के
सबसे बड़े मुजाहिद होते हैं। इंसान जिंदगी में वही पाता है जो वो दूसरों को देता है। इल्म की राह में करामत बहुत नापसंदीदा शय है। जब हम अपनी नफ्स की मानने लगते हैं तो हमारा कल्ब या ज़मीर हमें जीने नहीं देता। रूहानियत कभी फल फूल नहीं सकती जब तक कि किसी भी शख्स के दिल में हिर्स या लालच मौजूद हो। फ़कीरी अपनी असल हकीकत पर नज़र रखती है और इसी वजह से उसमें आजिज़ी पैदा होती है। गुफ्तगू का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़रिए इंसान एक दूसरे को सीखता है। इस दुनिया में कम बोलने से गिले शिकवे और झगड़े कम होते हैं। अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो कोई खौफ या कोई डर और दुनिया की कोई भी ताकत हमें सीधी राह से नहीं हटा सकती। इंसान की किनाअत उसके ज़मीर को रोशन कर देती है। इस दुनिया में इंसान की रूह की गंदगी फसाद है। इल्म हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाता है और अक्ल अच्छे में से ज़्यादा अच्छे की तमीज़ सिखाती है। रूहानियत इंसान को रब के करीब ले जाती है। कोई भी इंसान बराह रास्त नसीहत से नहीं सीखता बल्कि वो अपने अमल से सीखता है। जब इंसान अपनी ज़ात पर कम से कम खर्च करता है और ख्वाहिशात का गला घोट देता है तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की रग़बत उसके दिल से ख़त्म हो जाती है। तारीफ़ से दूर रहना चाहिए क्योंकि मुंह पर की गई तारीफ़ ऐसा जहर है जो इंसान को मार देता है। नफ्स को ठिकाने पर रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि रब को हर जगह मौजूद समझा जाए। सुन्नत ये कहती है कि अपने पास आने वाली हर शख्स से इतनी मोहब्बत से पेश आओ कि हर इंसान समझे तुम उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो। जो सच्ची मोहब्बत रब ताला के लिए इंसान के दिल में पैदा होती है वो मुलाकात की तमन्ना रखती है। ख्वाहिश कीजिए कि आपके दुश्मन भी आपसे भलाई की तवक्को करें, इस तरह आप दुनिया पर छा जाएंगे। रब की रहमत को जोश में लाने का आसान तरीका ये है कि उसके बंदों पर आप मेहरबान हो जाओ, रब आप पर मेहरबान हो जाएगा। इस दुनिया में जिस शख्स में आजिज़ी है रब ताला उसे मखलूक में बाइज्जत कर देगा। अगर आप रूहानियत की राह पर चलने के ख्वाहिशमंद हैं तो लोगों की तल्ख बातों को मुस्कुराकर टाल दें। इस दुनिया में जो शख्स ज़हनी तौर पर ईमानदार नहीं वो जिस्मानी तौर पर भी ईमानदार नहीं होगा क्योंकि अमल की असल इब्तिदा सोच है। इल्म देना बहुत आसान है लेकिन इल्म लेना और उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। अना बहुत बुरी चीज़ है और यही इंसान की तबाही की बाइस बनती है। मोमिन की ज़िंदगी का असल मकसद ये होता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं लेकिन दूसरों के हकूक़ की अदायगी मुझ पर लाजिम। ये नेक इंसानों की खूबी है कि वो पछतावों में मुब्तला रहते हैं। जिस शख्स ने अपने दिल को किना और बुग़्ज़ से पाक नहीं किया वो कभी रूहानियत की किसी मकाम पर नहीं पहुंच सकता। इंसान का पेट खाली हो तो उसकी नफ्स कमज़ोर हो जाती है। हम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे और हम में से सबसे बदतरीन शख्स वो है जिसके शर से मखलूक खौफज़दा रहे। इस दुनिया में कुछ लोगों में ये सिफत होती है कि वो ऐब जानकर भी साथ नहीं छोड़ते।